when I talk about something toxic, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, naturopathy is not a joke. When I joined college, I honestly thought life is going to be amazing. So, hey guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about you things no one talk you about naturopathy college. When I joined college, I honestly thought life is going to be amazing. बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, bunking lectures, collecting memories and everything. But reality hit different, guys. ऐसा हम सोचते हैं, कॉलेज ऐसा होता नहीं है. Especially studies are quite manageable, but friends are completely unreal. I do find people, but they all are toxic. And I don't think I have to explain what toxicity really means. To deal with the toxicity for which I was not ready. I got unnecessary dramas, fake friendships, and which let me left out from everything. The thing which impacts me more was these people around me rather than studies. Something which nobody prepares you for. Coming with a big expectation, then please come with a mental state that you have to deal with everything here. So hey guys, दिस इज जानशी जान एंड आई एम अ बी एन वाई सेकेंड ईयर स्टूडेंट. सो अगर तुम नेचुरोपैथी ज्वाइन करने का सोच रहे हो, दैट इज बी एन वाई एस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, एंड ऑलरेडी कॉलेज में हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल. सो आज मैं तुमसे वो सारी बातें कहने वाली हूँ जो कोई भी नॉर्मली नहीं कहता है. लेट्स स्टार्ट इट. It's not as easy as you think. Yeah. Most people think that naturopathy is all about yoga, diet, chill life, messy and all. इतना ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं होता है. It's just easy. But let me tell you, if you are in the first year of the naturopathy college, you have to study anatomy, physiology, and biochemistry. And these are the same subjects which you are going to study in medical course, in MBBS course also. So these subjects are not so basic. And in the second year, you are going to study pathology and microbiology. Apart from these are the MBBS syllabus. Okay, apart from these, you have to study core subjects of naturopathy like yoga, PNC, which is nature and cure, which is your main subject, and Sanskrit also in the first year. So if you are coming like with that mindset that naturopathy is nothing, so let me tell you, it is far beyond that. Okay, have to get the deeper concept. Naturopathy is not a joke. Most of the people choose this course just randomly, but यहाँ पर तुम्हें efforts देने पड़ेंगे, तभी तुम survive कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होती है. यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. इफ़ यू आर इन अ गुड कॉलेज, रिसोर्सेज, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है, स्टाफ अच्छा है, देन तुम अपने डाउट्स जाके पूछ सकते हो. बट इफ़ आई से, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. हमारा सिविल सिलेबस जो होता है नेचुरोपैथी का कम्प्लीटली इज लाइक MBBS कोर्स. So for studying the main subjects like anatomy, physiology, biochemistry, you can study it from YouTube. These are actually free and you can buy the courses for subscription. You can take subscription of any of the thing. Okay, if you want more understanding. So get a group. अब वो group अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. People are committed to smoking drugs and alcohol and everything. So if you are doing it, please be mindfully do these practices because it will impact your studies also. So choose your group wisely. Next point is yoga is not what you think. It's not just about stretching, flexibility and everything. It's way beyond you think. People think yoga का मतलब होता है pranayama, meditation, थोड़े बहुत you basic asanas, but that's not a thing, guys. Yoga is completely different. It is a completely different science where you will study about the posture, alignment, breathing pattern during the asanas. Not only this, you will study about kriyas. Kriyas are the cleansing practices which helps to remove toxins from your body. You will study not one type of meditation, there are various type of meditations like omkara, chakra, and how they are helps to activate your chakras, kundali jagran, kundali activation. So there are so many things, and yoga is definitely a vast subject. If you study it, you will love it.
फिर आता है टाइमिंग एंड एप्लीकेशन, विच पेशेंट कैन परफॉर्म दैट आसनास, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दैट आसनास, बेनिफिट्स ऑफ द आसनास, टाइमिंग, ड्यूरेशन, and everything you will study in this BNVAS course. Okay, and if I talk about pranayamas, तो pranayamas भी सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, they are various type like भस्त्रिका, उज्जाई, ब्राह्मरी, सूर्य भेदना, चंद्र भेदना, and lot of pranayamas are there. So I would say yoga is damn a vast subject. My next point is practical knowledge matters more than a theory. तुमने जो भी रटा रट रट के तुमने पढ़ लिया, इट्स ओके, बट तुम उस नॉलेज को तुम कितना पेशेंट पे अप्लाई कर पा रहे हो, तुम खुद पर कितना अप्लाई कर पा रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. सो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमें बस्सी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाया जाता है. वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, हमें वहाँ पे मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मसाज टेक्निक्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमा, ये सब चीज़ें जो होती है हमें वहाँ पे पेशेंट्स को दी जाती है. हमें वहाँ पर उन्हें देखना होता है. फर्स्ट थिंग होती है, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम ऑब्जर्व करोगे इन चीज़ों को, एंड यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केस हिस्ट्री. तुम्हें केस हिस्ट्री लेना आना चाहिए कि उनकी डाइट क्या है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी एज क्या है, उनमें पहले क्या इश्यूज रहे हुए हैं, उन्हें ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा हो रहा है, वो कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस एंड मैनी क्वेश्चंस मोर विच हैव टू आस्क ड्यूरिंग अ केस हिस्ट्री. सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इफ़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम एक कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, कितना पेशेंट आउटफ्लो इनफ्लो है उस कॉलेज के अंदर. अगर वो कॉलेज में, अगर उस कॉलेज का दूसरा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे तुम्हें कितनी बार लेके जाते हैं. एंड अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तुम्हारे कॉलेज में, देन जॉइन अ क्लिनिक. खुद से खुद के लिए काम करो अगर तुम्हारे कॉलेज अच्छा नहीं है तो. बिकॉज एट द एंड डॉक्टर वही है जो पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए, ना कि सिर्फ एग्जाम्स क्लियर कर पाए. पॉइंट नंबर 5 इज पीपल डोंट टेक दिस फील्ड सीरियसली. यस, पीपल, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे पीपल, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो लोग रेंडमली आ जाते हैं. क्यों आते हैं? यहाँ तो उनका नीट अच्छा नहीं गया होता है, तो उन्हें ये गूगल करने से, रिसर्च करने से उन्हें PNVS के बारे में पता चलता है, वो लोग यहाँ आ जाते हैं. सेकंड, उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं तो वो आ जाते हैं. थर्ड चीज़, पेरेंट्स को लगता है कि उनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाएंगे इस कोर्स में, वो इसलिए आ जाते हैं. बहुत ही कम चांसेस हैं फिर लोग खुद इसको सर्च करेंगे कि नेचुरोपैथी क्या होता है एंड यहाँ पर आएंगे. चलो ठीक है, तुम जिस भी तरह से आ रहे हो बट डजेंट मैटर, बट मैटर इज द थिंग, तुम यहाँ आके क्या करते हो. कोई नॉर्मल डिग्री तो है नहीं, ये तुम्हें डॉक्टर बनाने वाली है. सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट. तुम्हें थ्योरी भी समझनी पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो. एंड अ रियलिटी, फ्यूचर कैसा होएगा ये डिपेंड करता है तुम पे कि तुम इस फील्ड को कितना आगे लेके चाहते हो. ये हर चीज़ एक इंसान पे ही डिपेंड करती है कि मैं इसको कितना आगे लेके जा पाऊंगी. यहाँ पर स्कोप भी है, रिस्पेक्ट भी है, और अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी है. बट अगर तुम सिर्फ टाइम पास करोगे तो तुम ये इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते. एट द एंड फील नहीं, तुम अपनी वैल्यू डिसाइड करोगे. पॉइंट नंबर 6 इज इट चेंजेस योर लाइफ स्टाइल. सो ये कोर्स तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा अगर तुम इसे अब खुद पर अप्लाई करोगे. इट ट्रांसफॉर्म्स यू थ्रू एवरी वे पॉसिबल. कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इट टेल्स यू अबाउट योर डाइट, योर रूटीन. धीरे धीरे तुम अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, तुम अपनी डाइट पे ध्यान देने लग जाओगे. तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए, किस टाइम पे उठना चाहिए. स्क्रीन टाइम तो तुम्हें अपना कम करना ही चाहिए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. सो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगे. यहाँ पर इस फील्ड से तो अपनी बॉडी को समझने लगोगे. हम वैसे तो कुछ भी खा लेते हैं, बट यू विल स्टार्ट मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस कि ये चीज़ मुझे कब खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए. तुम अपनी एक्सरसाइज, स्लीप, रूटीन सब पे फोकस करने लग जाओगे अगर तुम इस फील्ड को सीरियसली लेते हो. ये सब तभी होगा. एक्चुअली स्लो प्रोसेस, बट अगर तुम ट्रस्ट करते हो एंड अपने ऊपर फेथ रखते हो, देन यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट लिविंग. My next and last point is you might feel confused sometimes. नेचुरोपैथी एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में हमें सबको तो ज़्यादा आइडिया है नहीं, बिकॉज दीज कोर्सेज आर नॉट फेमस एज MBBS. सो तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे कि इससे अच्छा तो मैं नर्सिंग ही कर लेती या कर लेता, इससे अच्छा तो मैं फिजियोथेरेपी अच्छी थी, या फिर मैं नीट के लिए वापस अप्लाई कर देता. बट अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते रहोगे,
तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, तुम उसकी प्लानिंग करते रहो, उस पर तुम्हें डायरेक्शन आज ही से ही बनाना होगा कि तुम्हें इस पाथवे पे चलना है आगे चल के। अगर तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाए। तुम्हें ये रियलाइज करते ही होंगे कि हर फील्ड का अपना अपना स्कोप होता है, अपना वैल्यू होता है। तो स्कोप है, बस तुम्हें उसे बिल्ड करना आना चाहिए। तुम अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, अपने पाथ पे फोकस करते रहो, एंड जो भी तुम्हारा गोल है उस पर अच्छे से काम करो। सो देर आर सो मेनी स्कोप्स ना, यू कैन बी अ प्रोफेसर, न्यूट्रिशनिस्ट, तुम योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, एंड यू कैन बी अ नेचुरोपैथी फिजिशियन। सो जो भी तुम्हारा गोल है तुम्हें उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग काम करना। स्टार्टिंग में क्लैरिटी तो नहीं आएगी, बट कंसिस्टेंसी से तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो तुम अगर इस फील्ड में आना चाहते हो या ऑलरेडी हो, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू वन थिंग, दैट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुमने इस फील्ड से कनेक्ट कर लिया, देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। नॉट ईजी बट इट विल वर्थ यू इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट। सो बेसिकली इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, ये वीडियो मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बनाया है, एज जस्ट आई एम ऑल्सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो अगर तुम बी एन वाइज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम ऑलरेडी हो, और तुम ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो पहले तो अपनी स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ बी एन वाई स्टूडेंट। एंड अगर तुम्हारे मेरे लिए और भी कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज गो देयर इन द कमेंट सेक्शन। And if this video really helped you, don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye.